मॉडर्न मॉडर्न का मतलब बहुत बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आज का जो हमारा विज्ञान है, जो अभी तक विज्ञान में जो प्रगति हुई है, जो अध्ययन हो चुके हैं, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। क्या वो आध्यात्मिकता में विश्वास रखता है? और जो शाकाहार है, शाकाहार जो की जीवन की पद्धति है, क्या उसमें उन लोगों का विश्वास है तो कितना प्रतिशत तक है, और नहीं है तो क्यों है? दोनों ही विषयों पर लोग अपनी अपनी राय रख सकते हैं। ये ओपन फोरम है, आपको पूरी आजादी है, आप अपने व्यूज को रखें। कोई जरूरी नहीं है कि आपका मत और हमारा मत बिल्कुल एक ही हो। यहाँ इंडिपेंडेंट सभी लोग अपनी अपनी मत रख सकते हैं। कुछ हमारे बीच विद्वान ऐसे हैं जो उस पे आप हमारा जो ओपिनियन है वो भी हम बताएंगे, क्योंकि चूंकि हमारा ये जो फोरम है, यहाँ सारे लोग ही वेजिटेरियन हैं। हो सकता है ओपन फोरम में कुछ बात और भी लोग जुड़े या और लोग इसको सुने, तो हमारी एडवोकेसी तो उसकी तरफ ही रहेगी, वेजिटेरियनिज्म की तरफ ही। फिर भी अगर किसी को अपोज करना हो, प्रोटेस्ट करना हो, या कोई विपक्ष में भी अपने मत रखने हो, विचार रखने हो, तो उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं। अभी अभी हमने देखा, कोई एक दीदी ने हैंड रेस किया था, जयश्री जाधव दीदी शायद है, अब मैं उनका देख नहीं पाई। दीदी, आर यू स्टिल देयर? दीदी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, या जयश्री जाधव दीदी, या अगर आप बहुत इस पे रुचि रखती हैं और आपको कुछ अपना विशेष राय अपनी रखनी है, तो आप बिल्कुल, आपका स्वागत है। आप ओपनर के रूप में आज आ सकती हैं दीदी। थैंक यू दीदी, नमस्कार। नमस्कार दीदी, थोड़ी आवाज कम है क्या? मुझे कम लग रही है? ओके, आवाज चलिए। आ रही है मेरी? ठीक है, ठीक, ठीक है दीदी, बोलिए। आज का हमारा सब्जेक्ट है डज मॉडर्न साइंस बिलीव ऑन स्पिरिचुअलिज्म और स्पिरिचुअल साइंस। तो हम लोग तो पहले मॉडर्न साइंस की बात करेंगे। तो मॉडर्न साइंस इज बेस्ड ऑन फिजिकल रिसर्च। एनीथिंग व्हेन वी प्रूव प्रैक्टिकली, then modern science believe on that research on that things and its characteristics. This modern science research is going on continuously. As the technology is increasing, the modern science is progressing in that way. That modern science is basically based on the physical research, practical things. Whereas our spiritual science is totally based on the development of mind. And everyone knows that all living beings have mind, and all the activities of living beings are going due to commands of mind. However, modern science not able to find out the creation of mind and its physical existence, means where it is or what. We all know that a mind is there, but modern science is not yet able to find out the how the mind is created. In ancient times, our rishis also, when realized the importance of mind, they started researching on it. Then they realized that it is not under our brain power. We have to go beyond that power. Means beyond buddhi, we have to go. So we have to go beyond. They have to go beyond our brain power. So they started. Means then they realized that we have to go beyond. Means buddhi means bodhi. So they started doing meditations, and when they started increasing their intuition power, then they started knowing all the secrets of cosmos, and then they formed the spiritual science, that is yoga sadhana. They given all the methods of yoga sadhana, and that our Mahadev Shiv is the first scientist on this earth who has given scientific method of developing our mind and merging it into its ultimate goal, that is in cosmic center. And he has given the Tantra sadhana. But modern science not yet able to find out mind existence physically, as it is very subtle than the atom and
than the atom. However, Baba has given the science of mind particles, that is microvita. Means micro means very small, very tiny, and vita means vital energy. So particles carrying vital energy is microvita. So Baba said that when modern science will find out these microvita, then all chemical formulas will go under change. So now the questions of modern science is that why we should do the meditation, why we should do the spiritual sadhana, or why we should merge our mind into the Param Purush. That is the questions of today's modern science. As they don't know they don't know the unit mind, how it is created. So they also don't know the cosmic mind. What is cosmic mind? Means, because their research is not gone up to that point. So this is I want to say today. Now let's everyone speak. थैंक यू सो मच दीदी। आपने ब्रीफ में लगभग सारा जो इंट्रोडक्शन होता है स्पिरिचुअलिटी क्या है और माइंड क्या है आपने बहुत अच्छे से बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस चीज के लिए जो दीदी ने कहा हम सभी इस बात से सहमत हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि और अपनी अपनी तरफ से लोग अपने अपने शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करें या अपनी ज्ञान जो ज्ञान है ज्ञान का प्रदर्शन न कहते हुए भी फिर भी अपना हर एक लेवल हर एक व्यक्ति का एक ज्ञान का स्तर होता है, उस हिसाब से वो लोग शब्दों का भी चयन करते हैं। बेसिक बात तो यही है और सब लोग घुमा फिरा के हम लोग यही बात करेंगे और इस पे हम लोग अपनी अपनी राय रखेंगे। लेकिन कुछ दीदी स्टिल योर हैंड इज रेज्ड, डू यू वांट टू से समथिंग? जयश्री दीदी। ओके, No, no, I नाउ don't आई want विल, to speak. यू वांट टू से समथिंग? No, no. ओके, नाउ आई विल रिक्वेस्ट हरनंद दादा, प्लीज, योर वर्ड्स आर वेरी वैल्यूएबल फॉर अस, यू आर वेलकम। थैंक यू दीदी। दीदी अगर आपत्ति ना हो तो मैं हिंदी में बोलूं? बिल्कुल बिल्कुल दादा। दीदी ने एक छोटी सी संक्षिप्त रूपरेखा रखी है और विषय के को देखा जाए दो पहलू हैं। एक तो यह है कि विज्ञान का अध्यात्म से क्या जुड़ाव है और दूसरा है कि विज्ञान जो है आज का विज्ञान वो शाकाहारी भोजन के विषय में क्या सोच रखता है। तो एट द आउटसेट इस बात को क्लैरिफाई कर देना आवश्यक है कि साइंस और टेक्नोलॉजी ये दो शब्द हैं जिसको हम लोग एक साथ प्रयोग करते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो साइंस बेसिकली जैसा कि दीदी ने भी कहा कि ट्राइज टू अंडरस्टैंड द लॉज विच आर वर्किंग बिहाइंड द फंक्शनिंग ऑफ नेचर, एंड नेचर इंक्लूड्स द एंटायर कॉस्मोस, चाहे वो गैलेक्सीज का फंक्शन हो या ह्यूमन बॉडी का फंक्शन हो या हाउ एटम्स बिहेव और एटॉमिक स्ट्रक्चर, हर माने सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़े भूगोल में बड़ी बड़ी चीजें बता, हाउ ओशंस बिहेव, हाउ माउंटेन्स हैव कम ऑफ वोल्केनोस। तो विज्ञान हर चीज को समझने की कोशिश करता है कि इसके पीछे कौन सा सिद्धांत है जो काम कर रहा है। और टेक्नोलॉजी क्या है, जब विज्ञान उस सिद्धांत को स्पष्ट कर देता है और वो स्थापित हो जाता है कि हाँ ये इस नियम के तहत काम करता है, तब टेक्नोलॉजी उसका एप्लीकेशन साइड है कि अब हम इसको सभ्यता के लाभ के लिए, मानवता के हित में कैसे हम इसको उपयोग कर सकते हैं। तो साइंस जो है उपयोगिता और साइंस और उपयोगिता के बीच का जो पुल है वो टेक्नोलॉजी। जैसे आज हमारे पास मान लीजिए मेडिकल साइंस की जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो एक्सरे मशीन हो, चाहे वो सीटी स्कैनर हो या लेजर सर्जरी हो, लेजर के बड़े संख्या में, या रोबोट सर्जरी भी अब शुरू हो गई है, रोबोटिक सर्जरी। तो ये टेक्नोलॉजी तो आ गई, अब मदद कर रही है पूरी सभ्यता की और इंसानियत की, लेकिन इसके पीछे के सिद्धांत पहले स्पष्ट कर दिए गए कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू रोबोट कैसे काम कर सकता है। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं,
तो मैं पहले तो ऐसा है कि जब विज्ञान की बात आई तो सबसे पहले मैं आइंस्टीन की बात करूंगा। आइंस्टीन ने से एक इंटरव्यू में पूछा गया इससे जुड़ा हुआ एक सवाल। तो आइंस्टीन ने बहुत अच्छे अंदाज में एक छोटी सी कहानी सुनाई और कहा, मैं उसको पढ़ देता हूँ। वी आर इन द पोजिशन ऑफ ए लिटिल चाइल्ड एंटरिंग ए ह्यूज लाइब्रेरी हुज वॉल्स आर कवर्ड टू द सीलिंग विद बुक्स। मैं उसको हिंदी में पढ़ ही देता हूँ। कह रहे हैं कि हमारी स्थिति एक छोटे बच्चे की तरह है जो एक बहुत बड़े पुस्तकालय में जिसको रख दिया गया है, जिस जिस पुस्तकालय में सीलिंग तक, छत तक पुस्तकें भरी पड़ी हैं, और बच्चे को ये समझ में आ रहा है कि वो पुस्तकें किसी ने लिखी हैं, पर किसने लिखी हैं और क्यों लिखी हैं ये वो नहीं जानता है। और वो ये भी नहीं समझता है कि किन भाषाओं में ये पुस्तकें लिखी गई हैं। आइंस्टीन कह रहे हैं, द चाइल्ड नोट्स अ डेफिनेट प्लान इन द अरेंजमेंट ऑफ द बुक्स। बच्चा ये भी समझ रहा है ये पुस्तकें जो करीने से किसी नियम के तहत सजाकर रखी गई पूरी लाइब्रेरी में, वो, और लेकिन वो पूरी तरह इसको समझ नहीं पा रहा है। वो कोशिश कर रहा है समझने की। और आगे कहते हैं कि मनुष्य का जो ह्यूमन माइंड की बात दीदी ने कही, आइंस्टीन कह रहे हैं कि दैट इट सीम्स टू मी इज द एटीट्यूड ऑफ द ह्यूमन माइंड। मानव के मस्तिष्क की यही स्थिति है। एक छोटा बच्चा जो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में घूम रहा है, चीजों को देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, पर उसकी समझ उतनी नहीं है कि वो चीजों को समझ पाए कि इसमें क्या है, क्या कुछ है। और आगे वो कहते हैं कि जो आइंस्टीन की बहुत मशहूर पंक्तियां हैं, वी सी अ यूनिवर्स मार्वेलसली अरेंज्ड ओबेइंग सर्टेन लॉज। हम एक ऐसे विश्व ब्रह्मांड को देख पा रहे हैं जो बहुत खूबसूरती से जिसे सजाया गया है और जो कुछ नियमों के तहत वो चल रहा है, उस कुछ नियमों का अनुपालन वो कर रहा है। बट वी अंडरस्टैंड द लॉज ओनली डिमली। पर हम उन सारे नियमों को ठीक से समझ नहीं पा रहे। दिस इज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट कमेंटिंग। और कहते हैं कि आवर लिमिटेड माइंड्स कैन नॉट ग्रैस्प द मिस्टीरियस फोर्स दैट स्वेज द कॉन्स्टलेशंस। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कह रहे हैं कि हमारी जो छोटा सा मस्तिष्क है, मन है, वो उन रहस्यमयी शक्तियों को समझ नहीं पा रहा है जो इस पूरी गैलेक्सीज को, कॉस्मोस को चला रहा है। अब देखिए, इससे स्पष्ट बयान और क्या हो सकता है कि आइंस्टीन ने एक जगह और कहा है कि एक अजीब सा कॉस्मिक हार्मनी है जो किसी नियम के तहत बनकर यूनिवर्स चल रहा है। तो ये स्पष्ट है कि विज्ञान अब इस बात को समझता है कि बहुत कठोर नियमों से पूरा विश्व ब्रह्मांड चल रहा है। जैसे एक सीधी सी बात है कि इतनी सारी गैलेक्सीज, करोड़ों गैलेक्सीज, एक छोटी सी गैलेक्सी की एक छोटे से कोने में, मिल्की वे में हम रहते हैं। और मिल्की वे भी उतना छोटा नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। लाइट, एक रोशनी को, मिल्की वे को क्रॉस करने में 1000 लाइट ईयर लगता है। 1000 लाइट ईयर यू वी कैन गेस, क्योंकि प्रकाश की किरण जो है वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। तो 1000 लाइट ईयर लगेगा इस मिल्की वे में, जिसमें हम कहीं एक छोटा सा डॉट मिल रहा है। अगर मिल्की वे के भी मैप को हम देखें तो धरती के डॉट को ढूंढना पड़ता है कि धरती है किधर। तो ये आदमी की असलियत है और धरती की असलियत है। और पूरी गैलेक्सीज को देखें तब तो मुश्किल है कि मिल्की वे को भी एक डॉट मिलना मुश्किल है, क्योंकि करोड़ों गैलेक्सीज। तो विज्ञान इस बात को समझ चुका है कि हमारी अपनी सीमाएं। अब प्रश्न यह है कि एक और वैज्ञानिक थे, कार्ल सेगन, जिनका बहुत टीवी पर आया भी, सीरियल आया, और काफी मशहूर वैज्ञानिक है वो। उनकी एक पुस्तक है द डेमन हॉन्टेड वर्ल्ड, साइंस एज ए कैंडल इन द डार्क। उसमें वो कहते हैं साइंस इज नॉट ओनली कंपैटिबल विथ स्पिरिचुअलिटी। साइंस सिर्फ अनुकूल नहीं है, आध्यात्मिक अनुकूल तो है ही। वो कहते हैं इट्स अ प्रोफाउंड सोर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये अध्यात्म का एक बहुत ही गहरा स्रोत है विज्ञान। और कहते हैं व्हेन वी रिकॉग्नाइज आवर प्लेस इन एन इमेंसिटी ऑफ लाइट ईयर्स, जो मैं लाइट ईयर की बात कह रहा था, कि अगर हम अपनी जगह, अस्तित्व अपना ढूंढने की कोशिश करें कि लाइट ईयर के तहत हम किधर हैं। जैसे अभी वैज्ञानिकों ने कहा कि कितने करोड़ लाइट ईयर से
पर वो गैलेक्सी है। तो अभी जिस गैलेक्सी का पता लगाया गया है, तो और आगे कहते हैं वो व्हेन वी ग्रैस्प द इंट्रिकेसी, उलझने, ब्यूटी एंड सटलिटी ऑफ लाइफ, सौंदर्य और सूक्ष्मता का की जब हम परख करते हैं जिंदगी की, तब हमें एक अजीब सा एक की फीलिंग आती है, दैट सेंस ऑफ इलेशन एंड ह्यूमिलिटी कंबाइंड इज श्योरली स्पिरिचुअल। तो हमें जो एक विनम्रता का भाव आता है कि हम कितने छोटे हैं, कितने तुच्छ हैं, कितने क्षुद्र हैं इस विशाल सृष्टि में, फिर भी कितने विकसित प्राणी हैं, सृष्टि के श्रृंगार हैं। ये भावना जो है वो आध्यात्मिक भावना है। तो विज्ञान का चूंकि मूल पर्पस ही अलग है, कि उसका पर्पस ये है कि हम चीजों को समझें, कि और जो बड़े बड़े वैज्ञानिक ही वो इस बात को समझ गए कि ये विशाल ब्रह्मांड एक कुछ नियमों के तहत चल रहा है, और ये नियम किसी ने बना रखे हैं। ठीक है, हम उनको जिस नाम से भी पुकारें, जो कंट्रोलर ऑफ द ईश्वर क्या है, जो ईश है, जो कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्स, यही ईश्वर का शाब्दिक अर्थ है। तो कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्स तो है ही, क्योंकि गैलेक्सी अगर किसी कंट्रोल में नहीं हो, थोड़ा सा भी अगर जियो मैग्नेटिक फोर्स चेंज हो जाए, तो सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से टकराने लगे, और पल भर में ये पूरा कॉस्मोस टकरा के और महाशून्य में विलीन हो जाए। ऐसे गहन, अब धरती को ही देखें, लाखों साल से एक फिक्स्ड ऑर्बिट पर चली जा रही है। तो दीज आर वेरी क्लियर रूल्स। एक आदमी सड़क पर चलता है तो वो भी उसकी चाल सीधी नहीं रहती है, कभी बाएं कदम पड़ता है, कभी दाहिने, और वो धरती लाखों साल से अपनी धुरी पे चल रही है और एक सूरज के चारों ओर घूम रही है। तो ऑब्वियसली देयर इज सम लॉ विच इज कंट्रोलिंग द अर्थ। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरा प्रश्न है कि वेजिटेरियनिज्म का, तो विज्ञान का ये मूल उद्देश्य नहीं है कि भोजन आप क्या करें। अब विज्ञान क्या कहता है, इसको थोड़ा सा एक दो उदाहरण से समझ लिया जाए। आई एम नॉट अ डॉक्टर बट लिटिल बिट दैट आई नो। जैसे कहता है कि जो मांसाहारी जीव हैं उनको कलोन कैंसर की संभावना ज्यादा रहती है, कार्सिनोजेनिक होता है उसमें एलिमेंट, और जो प्लांट बेस्ड फूड है उनको कलोन कैंसर की कम होती है संभावना। फिर आगे डायबिटीज 2 जो कहते हैं, जो कॉमन डायबिटीज है, उसके बारे में विज्ञान कहता है, जीव वैज्ञानिक कहते हैं जो प्लांट बेस्ड फूड है वो ज्यादा अच्छा प्रोसेस करते हैं ग्लूकोज को और इंसुलिन को, तो इसलिए जो प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं उनको डायबिटीज 2 होने की कम संभावना है, और जो मांसाहार ग्रहण करते हैं उनको इसकी अधिक संभावना है। ये वैज्ञानिक स्तर पे बात है। सूक्ष्म स्तर पर तो है ही कि ये विज्ञान ने साबित किया है कि जो हम खाते हैं वही उसी अन्न का जो रस है उससे हमारा सेल बनता है। तो जैसा वो कहते हैं कि जैसा अन्न होगा वैसा। और बाबा ने बहुत क्लियर किया है कि माइंड जो है 2 तरह के कंट्रोल को रखता है। एक तो वो खुद को कंट्रोल करता है, दूसरा हर एक सेल का अपना माइंड है। एवरी सेल हैज अ माइंड। हम सभी जानते हैं कि करोड़ों अरबों सेल से एक शरीर, मानव का शरीर बना है। तो एवरी सेल हैज अ माइंड, और कहते हैं कि वो एक माइंड का मेजर फंक्शन है उन सारे सेल्स को कोऑर्डिनेट करना, सारे सेल्स को कोऑर्डिनेट करना। और आप देखें कि ये कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा चलता है कि एक साथ एक आदमी 8 से 10 कार्रवाई साथ में कर रहा है, ब्रेन कोऑर्डिनेट कर रहा है 7 चीजों को एक साथ। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, मेरी आंखों की पलकें भी गिर रही हैं, मेरी अंगुलियां भी चल रही हैं, मेरे गले से आवाज भी आ रही है, आवाज ऊपर नीचे भी हो रही है, मेरा सर भी, गर्दन भी हिल रही है। तो ये सारा एक एक्टिविटी एक ब्रेन कोऑर्डिनेट कर रहा है, जबकि मुख्य फोकस मेरा अभी है कि मुझे क्या बोलना है। तो विज्ञान ने, जीव विज्ञान ने, खासकर बायोलॉजी ने बहुत से रिसर्च ऐसे किए हैं जिससे पता चलता है कि प्लांट बेस्ड फूड जो है वो ह्यूमन बॉडी के लिए ज्यादा अच्छा है। और दूसरी बात एक और मैं कहूंगा, जरूर ये विज्ञान मानता है कि जैसे B12 और विटामिन डी, ये कहता है कि चूंकि मांसाहार में, अंडे में, मछली में जैसे विटामिन डी ज्यादा है और B12 भी प्लांट बेस्ड फूड में कम है, तो विज्ञान कहता है कि प्लांट बेस्ड फूड को, फूड सप्लीमेंट इन दोनों के लिए, खासकर विटामिन डी के और B12 के लिए, फूड सप्लीमेंट के साथ जो है शाकाहारी को लेना चाहिए। क्योंकि शाकाहार में सामान्य तौर पर उतनी मात्रा जितनी शरीर को चाहिए वो मिल नहीं पाती है। पर विज्ञान कभी इस बात को नहीं कहता है कि आप विटामिन डी के लिए अंडा खाइए और मछली खाइए तभी आपको प्रॉपर विटामिन डी मिलेगा।
बल्कि ये कहा जाता है कि धूप में बैठी है तो उसे विटामिन डी लीजिए। तो विज्ञान एक तरह से इशारा कर रहा है कि शरीर जो है, और एक चीज और है, हमारी आंख, ये विज्ञान बहुत पहले साबित कर चुका है कि हमारी आंख की जो लंबाई है वो इतनी ज्यादा इसलिए दी गई है कि हम शाकाहारी भोजन को प्रोसेस करते हैं। ये बाबा ने भी कहा है, आप सभी जानते हैं कि मनुष्य भी जब शुरू शुरू में आया था तो गाय की तरह वो च्यूइंग द कट करता था, जिसको कहते हैं आम भाषा में पागुर करना। तो जो अपेंडिक्स है, तो खाना पहले समेट लेता था, दिन भर खाता रहता था, फिर एक जगह बैठ के वो गाय की तरह चबाता था और वो खाना स्टोर होता था अपेंडिक्स में। बाद में जब कृषि प्रधान सभ्यता हो गई तो अपेंडिक्स की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए आज उसको एक वेस्टिजियल ऑर्गन विज्ञान कहता है कि उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जैसे पहले मनुष्य आया था तो बंदर की तरह उसकी पूंछ भी थी, ये बाबा ने भी कहा है, क्योंकि नीचे बहुत खतरा था जंगली खतरनाक जानवर से, तो वो पेड़ों पर, डाल पर पूंछ को बांध के पेड़ों पर रहता था, या जब बुद्धि आई तो गुफा के पत्थरों को हटा के घुस जाता था और पत्थर को फिर सामने रख देता था कि कोई खतरनाक जानवर बड़े बड़े सब थे। तो आदमी की, और एक चीज है, जो मांसाहारी जीव हैं उनकी आंख छोटी है, आंख की लंबाई कम है, क्योंकि वो जल्दी मांसाहारी जो है वो वो जो फूड है पेट्रीफाई करने लगता है। तो इसीलिए जो नहीं पचता है उसको, जो मांसाहारी जीव का जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वो तुरंत उसको बाहर करता है, वरना वो विषैला हो जाएगा। और जो शाकाहारी जीव हैं उनकी आंख लंबी है, मनुष्य की आंख भी इसलिए बनाई गई है। इसलिए विज्ञान सम्मत बात है कि प्रकृति ने मनुष्य को मूलतः शाकाहार भोजन करने के लिए ही शरीर बनाया है, और उसी से मनुष्य स्वस्थ भी रहता है। और विटामिन डी और बी और इसके सप्लीमेंट की जो मैंने बात कही, तो बाबा ने जो प्रमिताहार की बात कही है, बैलेंस डाइट की बात कही है, उसमें इसी की ओर इशारा है कि जो तुम्हें शाकाहार भोजन से ना मिले तुम उसको सप्लीमेंट लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मांस मछली अंडा खाओ। ये संक्षेप में मुझे कुछ बातें कहनी थी, थोड़ा समय लिया, क्षमा चाहूंगा। दीदी आप म्यूट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और आपने कोई विशेष समय नहीं लिया, आपके लिए हम लोग इतना समय बचा करके रखते हैं, आपका समय रिजर्व रहता है। अभी मेरे हाथ में एक किताब है, व्हाट्स रॉन्ग विथ ईटिंग मीट। ये हमारा आनंद मार्ग पब्लिकेशन का ही ये किताब है। इसमें मैं आप ही की बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी, एक पैराग्राफ मैं इससे रीड करती हूँ। जो आपने बीमारियों की बात कही, एनिमल्स डिजीज। Another danger facing meat eater is that animals are frequently infected with diseases which are undetected or simply ignored by the meat producers or inspectors. Often, if an animal has cancer or a tumor in a certain part of its body, the cancerous part will be cut away and the rest of the body sold as meat. Or worse yet, the tumors themselves will be incorporated into mixed meat such as hot dogs and euphemistically labeled parts. In one area of America where there is a routine inspection of slaughtered animals, 25,000 cattle with eye cancers were sold as beef. Scientists have found experimentally that if the liver of diseased animal is fed to fish, the fish will get cancer. A famous vegetarian doctor, Dr. J.H. Kellogg, once remarked when he sat down to a vegetarian dinner, it's nice to eat a meal and not have to worry about what your food में डाइड ऑफ। मतलब ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है आप खाना खा रहे हैं, और ये जिसको खा रहे हैं वो कैसे मरा है वो आपको पता भी नहीं है। कि कैंसर से मरते हैं वो जानवर, उनके उस पार्ट को निकाल करके उनके बाकी पार्ट्स को बेचा जाता है, कहीं कहीं तो उस ट्यूमर वाले पार्ट को भी लोग बेच देते हैं और उस पे अलग तरीके का एक लेवल लगाते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आता। आजकल हॉट डॉग्स वगैरह जो लोग खा रहे हैं उसमें बहुत फ्रिक्वेंटली मिलाया जाता है, और उसको लोग सोचते हैं कि हम इसको खा के बहुत एडवांस हो रहे हैं। अलग अलग नाम जो दिए गए हैं वो नाम आपको मूर्ख बनाने के लिए दिए गए हैं। और ये पूरी किताब है बहुत, ये बहुत हैंडी बुक है, मुश्किल से 30 रुपीज की बुक है। मुझे तो किसी ने गिफ्ट, दादा ने गिफ्ट ही किया है, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम लोग भी किसी को ये गिफ्ट करें और लोग इसको पढ़े। इसमें बहुत जितने भी क्वेश्चंस हैं इससे संबंधित वो सारे क्वेश्चंस के आंसर इसमें दिए हुए हैं। और ये बहुत मोटी बुक नहीं, बहुत पतली सी बुक है। यहाँ हमारा अपना पब्लिकेशन है तो उसका प्रचार भी हो ही जाना चाहिए यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका। अब मैं राजेंद्र दादा से रिक्वेस्ट करूंगी कि दादा आप अपने आप को अनम्यूट करें और दो शब्द बोलें। बहुत बहुत स्वागत दादा आपका।
दीदी नमस्कार, थैंक यू सो मच। मैं आई एम ऑडिबल दीदी? या दादा, वेरी मच। या, सो थैंक यू। हमारे हरानंद दादा ने बड़ा साइंटिफिकली चीजों को पकड़ा। बट मैं आज बाबा की बातें पढ़ रहा था इसी से संदर्भ में, तो मैंने देखा कि वेर मटेरियल, जिसको हम साइंस कह रहे हैं ना, द वेरी सब्जेक्ट इज डज मॉडर्न साइंस बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी। तो जिसको हम मॉडर्न साइंस कह रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी इन द ट्रू सेंस, स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस। यदि आप संस्कृत मीनिंग से जाते हैं तो जिसको हम विद्या कहते हैं, एंड मेटेरियल साइंस को अविद्या पार्ट में ही आता है। पर बाबा कहते हैं हालांकि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फॉर सर्वाइवल बोथ साइंस इज इंपॉर्टेंट। But we should know that when material science ends, spiritual science starts. Because we all know it is an extra cerebral science at most of the area. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग बात करते हैं, बाबा कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी को जानना है तो हमारे अजय भल्ला दादा सामने हैं, कितना अच्छा क्लास लिए थे। So without knowing about chakras, hormones, glands, sub-glands, it is not possible in a true sense of the term. Ideally speaking, साइंस को डिटेल में, आई मीन स्पिरिचुअल साइंस को डिटेल में जो बाबा ने बताया है, शायद उतना पहले किसी ने इतना स्पष्ट रूप से, आई मीन लॉजिकल रूप से नहीं बताया। सो it is obvious, we can say with these inferences that science today is still in infancy stage, you know. And the fact is कि whatever the sensory organ से जो beyond जाता है, they don't believe in that. ये बहुत अजीब सी बात है। सो एक बात तो जरूर है कि देखिए, इन्फ्रेंसेस तो सभी महसूस करते हैं कि नहीं ऐसा होता है। आई जस्ट एक चीज आ रहा है मेरे मन में, ऐसे बहुत एग्जाम्पल मिले हैं समाज में जहाँ रीबर्थ का प्रूफ मिल चुका है। आई मीन वो कहीं जन्म लिया और अपने पूरे जन्म के, बाबा भी कहीं लिखते हैं कि वो बता सकता है आफ्टर टिल अ सर्टेन एज, किसी किसी की मेमोरी में ऐसा रहता है। बट स्टिल साइंस डोंट बिलीव, आई मीन दे कैनॉट प्रूव इट। इसका मतलब ये नहीं कि जो नहीं प्रूव होता है वो नहीं होता है। इट्स नॉट पॉसिबल। दीदी ने बहुत सुंदर बोला शुरू में कि आज तक वो यही नहीं डिफरेंशिएट कर पाया है कि माइंड एग्जिस्ट एंड हाउ माइंड एग्जिस्ट, व्हाट इज माइंड इन ब्रेन। और आई मीन हम लोग क्लास ले रहे थे, विमलानंद दादा तो बोल रहे थे कि भाई ब्रेन तो जब आदमी मरने के एक सेकंड पहले तक तो सब कुछ वैसे ही चलता रहता है। तो ऐसा क्या होता है कि वो आदमी मर जाता है? आई मीन इट डजंट एग्जिस्ट बिकॉज माइंड लीड्स द बॉडी। तो वो बात आज तक तो इसलिए इसके लिए चिंता की बात नहीं है। बट यस, साइंस डोंट बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, रादर वी कैन से कि दे इवन दे आर द स्पिरिचुअलिस्ट, यू नो, बट बिकॉज दे कैनॉट प्रूव इट, they are bound to say that no, we do not, I mean they cannot prove। तो बाबा भी कहते हैं कि देखो, जैसे हमारे दादा हरान दादा ने बहुत सुंदर बात कही कि हमने एटम्स का स्टडी सबने कर लिया है कि एटम्स के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स, आई मीन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। एंड सिमिलरली द सोलर सिस्टम, बाबा सेज सोलर सिस्टम में पृथ्वी मूव्स अराउंड द अर्थ। देन लूनार में पृथ्वी, आई मीन मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता है। तो देर इज अ सर्टेन लॉ जिस तरह से पूरा दुनिया चल रही है, एंड दैट इज अ फिक्स लॉ। इसी तरह से बाबा कहते हैं कि देर इज अ कॉस्मिक न्यूक्लियस around which everything is moving, including humans. So, what is spirituality is, in our language, to go near to him, और जहां से आए थे वहीं पहुंच जाना। ब्रह्म से आए थे, निर्गुण ब्रह्म से पुनः निर्गुण ब्रह्म में पहुंच जाना। बट उसका जो साइंस है, द वेरी बेसिक साइंस टू एक्सपीरियंस and become one with him, that is only available with the Anand Marg spiritual science, I can say today with जहां तक दूसरा बात है दीदी की, मैं कहना चाह रहा था वेजिटेरियन की बात है। दादा ने बहुत सही बोला कि आजकल सब जानते हैं कि हमारा साइंस इतना तो जानता है कि हमारा इंटेस्टाइन का लेंथ बहुत कम है, एंड इट इज नॉट गुड फॉर द, इट इज नॉट मेड फॉर द ह्यूमन बींग्स बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ, आई मीन कम टाइम में ही वो निकल जाना चाहिए क्योंकि, तो इस तरह से। बट स्टिल आई कोट सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, आई मीन द ग्रेट साइंटिस्ट इतना ही कह सकते हैं कि बहुत लोगों ने, जैसा मैंने बोला, इन्फ्रेंसेस हैं, जानते सब हैं, बट दे कैनॉट प्रूव, सो दे डोंट बिलीव इट।
हालांकि आइंस्टीन की जो बात दादा ने कहा बहुत सही बात है। The known physician, I mean Einstein, was not only a genius in realm of physics, but also, I mean, advocate for vegetarianism. वो भी कहते हैं, and for he was in the terms of animal rights भी है। If you extend your नव्य मानवता की तरफ यदि हम अपने आप को झुकाते हैं, तो nobody have right to kill an animal for their food, because today there is enough of I mean vegetarian diet which can serve the purpose. तो उनका बिलीव था दैट ही बिलीव्ड इन द हेल्थ एंड एथनिक बेनिफिट्स ऑफ अ वेजिटेरियन डाइट। महात्मा गांधी को आप लोग जानते हैं, बोले इवन लियोनार्ड डाविंची भी इन्होंने के बारे में, पैथागोरस जो बहुत पुराने मतलब मैथमेटिशियन रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी रहे हैं, वो भी कहते हैं कि an ancient, I mean, philosopher, he knows that believes in the interconnectedness of the living beings. That is what नव्य मानवता कहता है। तो जो लोग इन बातों को विश्वास करते हैं, they will certainly believe that vegetarian lifestyle is good, and it has been proven also. I mean, you can see the vegetarian diet खा करके और नॉन वेजिटेरियन डाइट खा करके आप ये देख सकते हैं कि जहां लोग नॉन वेजिटेरियन ज्यादा, जैसे दीदी ने हमारे बीच में जो सही बोला पूनम दीदी ने, आजकल लोग शौक से खाते हैं फॉर द टेस्ट ऑफ द टंग, इन एब्सेंस ऑफ स्पिरिचुअल फीलिंग, और यू कैन से इन द एब्सेंस ऑफ संवेदनशीलता के अभाव में मनुष्य जो है नॉन वेजिटेरियन फूड खाता है। और कुछ तो मिसगाइड कर रहे हैं, मेडिकल साइंस जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो भी मिसगाइड करता है। और यू कैन से कि देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ देयर थिंकिंग, और इस वजह से वो लोगों को, आज भी हमारे यहाँ जो स्कूल चलते हैं, डे स्कूल चलते हैं, उसमें अंडे खिलाए जाते हैं। तो आई मीन, सो वी आई विल रिकमेंड दैट पीपल शुड बी स्पिरिचुअलिस्ट, because there is a certain law in universe and we should also follow a certain law. And same is the with vegetarianism. You can, अरे बाबा तो यहाँ तक कहते हैं, आई एम सॉरी, आई एम कमिंग, बाबा कहते हैं कि इन द केस ऑफ पॉजिटिव माइक्रोवाइटा, if it enters the bodies, even sudden death can take place in case of a non pure body. सो बाबा कहते हैं कि देखो, इसीलिए हम जब किसी को दीक्षा देते हैं तो उसके पहले हम इसकी व्यवस्था करते हैं, जब तक उसको हायर लेवल की दीक्षा देते हैं उसका डाइट ठीक हो। ये क्योंकि बाबा एक बात कह रहे हैं कि दोज हु फॉलो नॉन वेजिटेरियन डाइट आर नॉट फिट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव माइक्रोवाइटा। सो दैट्स व्हाई वो कहते हैं कि व्हेन आई माइक्रोवाइटा समवन, आई यूजुअली आस्क, जब हम किसी को माइक्रोवाइटा साधना देते हैं, या माइक्रोवाइटा मतलब पॉजिटिव माइक्रोवाइटा की जब साधना देते हैं, आपकी साधना ही पॉजिटिव माइक्रोवाइटा की साधना है, तो व्हेन डिड यू लास्ट टेक फिश एंड मीट, ऐसा पूछते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं पूछता हूँ। तो इट इज सो इम्पॉर्टेंट दैट एंड स्पिरिचुअलिटी एंड वेजिटेरियनिज्म is closely connected to each other. That is also important. So with these few words, Didi, I am closing my talk at present. Thank you so much. थैंक यू सो मच दादा। अभी दीदियों का टर्न है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई दीदी सामने आए। और मीतू दी, आर यू अवेलेबल? मीतू सिंह दीदी, इफ नॉट देन मीरा दी। नमस्कार दीदी। बहुत ही नमस्कार। सुंदर सारे दादा लोग बोल रहे थे, मैं तो सुन रही थी। इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स राजन दादा, हरानंद दादा, जयश्री दीदी सब लोग शेयर करी। जैसा कि दादा बोल रहे हैं कि जानते सब हैं, मानना नहीं क्योंकि कुछ चीजें बियॉन्ड द साइंस, उनकी लिमिटेशंस के बाहर है। आई थिंक स्पिरिचुअल वर्ल्ड जहाँ उनकी थिंकिंग स्टॉप होती है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड वहां से आगे स्टार्ट होता है। तो साइंस की एक लिमिटेशंस है, स्पिरिचुअलिटी की कोई लिमिटेशन, कोई बाउंड्री नहीं है। तो कुछ चीजें उनके दायरे से बाहर है। इसका मतलब ये नहीं है कि है नहीं, या उनकी थिंकिंग के बियॉन्ड है। बट स्पिरिचुअलिटी और साइंस का दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन होता रहता है, लेकिन अगेन काफी सारे साइंटिस्ट टाइम टू टाइम इस चीज पर एग्री भी होते आए हैं कि इतना बड़ा यूनिवर्स चल रहा है, कोई
सुप्रीम पावर, कोई पावर है जो कि पूरी सृष्टि को चला रहा है इतने सिस्टमेटिक वे में। हम लोग अगर लॉ एंड ऑर्डर या सिस्टम को भी देखें तो थोड़ा सा में उथल पुथल मच जाता है, पूरा वर्ल्ड हिल जाता है। और इतने बड़े वर्ल्ड, इतने बड़े यूनिवर्स इतने सिस्टमेटिक वे में चल रहा है, तो डेफिनेटली उस पावर साइंस के लिमिट के बाहर ही है। दूसरा, वेजिटेरियन डाइट पे मैं बोलूंगी कि आज साइंस भी इस चीज को मान रहा है। अगर आप कैंसर हॉस्पिटल में जाएंगी तो सबसे पहले बोला जाता है कि आप रेड मीट को बिल्कुल बंद करना है, खाने के लिए बिल्कुल मना किया जाता है, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है वहां पे बोला जाता है। अगर कोई फोर्सफुली खाते हैं तो उनका प्रॉब्लम। दूसरा मैं बताना चाहूंगी कि कुछ कोई सर्जरी जैसे होती है, आपकी बॉडी को हीलिंग की जरूरत है। आप ऐसा खाना खाएं जो सुपाच्य, ताकि आपका एनर्जी वेस्ट ना हो खाना पचाने में, तो आपकी हीलिंग फास्ट होगी, जो वेजिटेरियन होते हैं कंपेयर टू नॉन वेज खाने वाले। ये मैं खुद भी एक्सपीरियंस की हुई, और कुछ लोगों को मैं देखी हुई जो नॉन वेज खाते हैं और जो वेजिटेरियन खाते हैं, दोनों में डिफरेंस, क्योंकि मैं खुद कैंसर सर्वाइवल हूँ। तो मैंने देखा है कि मेरी हीलिंग बहुत फास्ट थी अदर पर्सन के कंपेयर में, जो जो लोग नॉन वेज लेते हैं। और ये मैं काफी सारे हम इससे रिगार्डिंग सेमिनार और ये होता रहता था, मैं पार्टिसिपेट करती थी। डॉक्टर्स भी एग्जाम्पल दे करके बताते थे। अगेन डॉक्टर्स क्योंकि उनकी बिजनेस भी है और प्रमोट करना है तो बोलते हैं, अदरवाइज दे नोज कि अब प्रोटीन डाइट के लिए बोलते हैं कि क्या गोट लेग का सूप बना करके पियो, या इस तरह का लोग बोलते हैं कि लो। लेकिन अगर आप नॉर्मली सोचे तो आपकी हीलिंग की जरूरत जब है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में एनर्जी जब जाएगी तो आपकी हीलिंग स्लो हो जाएगी। दूसरा, नॉर्मल भी अगर कुक्ड फूड हम खाते हैं उसको पचने में काफी टाइम लगता है। और नॉन वेज तो डेफिनेटली अगर आप देखेंगे जो खाते हैं, अगर उनका आप सर्वे करें तो स्लिपी स्लिपी वो फील करते हैं, लेथार्जिक फील करते हैं कंपेयर टू वेजिटेरियन डाइट खाने वाले जो। और उसमें भी अगर प्योर सात्विक है और रासिक है, उसमें भी अगर आप कंपेरिजन करें तो आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे अगर आपकी प्योर सात्विक है। प्योर सात्विक मीन्स आपका आपका बहुत ज्यादा ऑयली नहीं है, बहुत स्पाइसी नहीं है, फ्राइड नहीं है, इस तरह का आप हम लोग खुद भी महसूस करते हैं। अगर हम किसी फंक्शन में जाएं जहाँ की काफी हैवी डाइट अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली आप डल और थोड़ा स्लीपी महसूस करते हैं। नॉर्मल अगर आप वेजिटेरियन भी ले रहे हैं तो, और नॉन वेज जो ले रहे हैं तो आप देखेंगे उन लोगों की। और दूसरा, आप कितना डाइजेस्ट कर पचा पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं अपने सिस्टम से, तो अल्टीमेटली आपके अंदर वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जब बहुत लंबा टाइम रहेगा तो वो सड़ेगा, और डेफिनेटली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके सिस्टम को देगा। आपको डिजीज के तरफ अगर देखा जाए तो ज्यादा खतरनाक है वो। आज मैं एक वीडियो देख रही थी तो और भी डेंजरस है कि आजकल उसको इंजेक्शन दे करके बहुत जल्दी ग्रो किया जा रहा है, वो उसमें भी नेचुरल नहीं। एक तो वो और नॉर्मली वो डेंजरस, हेल्दी नहीं है। और अगर उसको आप जल्दी जल्दी इंजेक्शन, हार्मोन्स की इंजेक्शन दे करके उसको जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि कितना डेंजरस है। और मैं तो सुन करके घबरा गई कि आप कोई डिजीज है, कैंसर है या कुछ है। और सबसे बड़ी बात है जब उनको उनकी मानसिकता क्या होगी, अगर किसी को भी डेवलप्ड जीव को आप अगर आप उनको अपने भोजन के लिए अगर आप मार रहे हैं तो उस समय उनकी मानसिकता क्या होगी और उसका प्रभाव क्या हमारे सिस्टम पे नहीं पड़ेगा। तो साइंस भी आज मान रही है। वो अलग बात है कि साइंस बहुत सारे डॉक्टर्स या बहुत बोलना नहीं चाहते हैं या फिर प्रेशर देते हैं कि लो, लेकिन जनरली मैं नहीं देखती हूँ कि आजकल प्रेशर दे रहे हैं। और हमें एज अ अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं एज अ पेशेंट, हमें क्वेश्चन करना चाहिए। मैं खुद जब जाती थी चेकअप के लिए तो लोग बोलते थे, डॉक्टर बोलते थे कि रूटीन चेकअप के लिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप क्या मुझे दोबारा नहीं होगा, इसकी आप गारंटी देते हैं? तो बोलते हैं नहीं, रूटीन अर्ली डिटेक्शन के लिए मैं बुला रही। तो मेरा क्वेश्चन है कि 100% क्योर कैसे होगा?
मैं इससे कंप्लीटली किसी भी डिजीज से बाहर कैसे निकलूंगी? तो ये क्वेश्चन तो हमारे अधिकार में है। तो डेफिनेटली अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आप अपने IQ, अपने विजन को खोल करके रखें और क्वेश्चन करें, क्योंकि आपका ये हक है। आप ब्लाइंड जाएंगे और वो कुछ भी मेडिसिन दे देंगे और आप इजिली लेकर के आ जाएंगे। तो ये आपका भी। मैं अभी गई थी, नॉर्मल मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था, नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए मैं गई थी, और मेरा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा था। और डॉक्टर मुझे बोले कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। मैं बोली कि दादा, मेरा गुड कोलेस्ट्रॉल भी एक हायर लेवल पे है। डॉक्टर को मैं बोली कि मुझे मेरा गुड कोलेस्ट्रॉल भी हायर लेवल पे है, तो क्या मुझे लेने की जरूरत है? तो डॉक्टर बोले कि देखिए, डिपेंडेंसी एक बार ही अगर आप कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन कोई भी लेंगे तो डिपेंडेंसी हो जाती है। मैं बोली कि इट्स नीडेड। डॉक्टर बोले कि नो, इफ यू वांट टू डू योर वर्क एंड कंट्रोल, देन जरूरत नहीं है। तो ये आपके रीच में है, आप अपने आप को दिखाओ कि नहीं, मैं नहीं लूंगी, आई विल डू माई वॉक। मैं अपने योगा, आसन, एक्सरसाइज, वॉक, बाबा बहुत मेंशन किए, उससे मैं कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। तो ये तो हमें ही जागरूक होना पड़ेगा, और हमें जागरूक होने होंगे तो फिर डेफिनेटली हमें कोई इम्पोज तो कर नहीं सकता है कि आपको ये लेना ही पड़ेगा, आपको ये खाना ही पड़ेगा। उनका काम है, वो बोलेंगे और हमें अपना लॉजिक दे करके उनसे निकलना भी पड़ेगा। तो मुझे यही कहना था दीदी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दीदी। आपने बहुत सी बातों को रखा और पर्सनल एक्सपीरियंस के माध्यम से रखा। पर्सनल एक्सपीरियंस से जब कुछ चीज को शेयर करते हैं तो वो लोगों पे उसका प्रभाव कहीं अधिक होता है। और जहां तक हमारे मेडिकल साइंस की बात है, तो प्रूव भी है कि अगर आप एक बार बीपी, शुगर या किसी भी चीज की दवा में जाएं तो वो उनका एक बिजनेस बन जाता है, एक बिजनेस ट्रैप है कि आप फिर उसको दवाइयों को लेना ही होगा आपको, फिर वो उनका पावर बढ़ता ही जाता है, वो घटता नहीं है। और धीरे धीरे हमारा जो सिस्टम है, अगर हम उसको फाइट करने के लिए खुद से रेडी नहीं होंगे तो दिनों दिन वो हमारा हेल्थ भी डिटोरिएट करता है। ये तो हमारा मेडिकल साइंस आज इसी फील्ड में रिसर्च करके, और वो जो साइंस, मॉडर्न साइंस कह रहे हैं, वो उसी फील्ड में काम कर रहा है कि हमारे ट्रैप में कैसे कोई एक बार आए तो पूरी जीवन उसमें फंसा रहे। उसके बाद फिर आप सर्जरी में चले जाएंगे, स्टेंट लगा रहे हैं लोग, एक स्टेंट लगता है तो फिर दूसरे स्टेंट का रास्ता उसी में बना दिया जाता है। एक सर्जरी होती है तो समझिए अगली सर्जरी का बीज उसी में डाल दिया जाता है। एक सर्जरी जो उसने आज कराया हो तो अगले साल 5-10 सालों में फिर वो दूसरी सर्जरी को तैयार हो जाए। इस तरह की आजकल हमारी मेडिकल साइंस है। ये हर कोई जो जो जाता है डॉक्टरों के पास उसको कहीं ना कहीं ये पता होता है। इसलिए अच्छा हो कि हमें डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़े, हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल बना करके रखें और इन चीजों से दूर रहें, इस ट्रैप में हम ना फंसे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। और अब मैं, अगर अजय भल्ला दादा अभी हैं स्टिल, वो हमको सुन पा रहे हैं, तो दादा आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और दो शब्द हम लोग के बीच में रखें। जी नमस्कार दादा, स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को, प्रणाम। एक्चुअली मैं थोड़ा दिन में बिजी था तो मैं प्रिपेयर या कुछ कर नहीं पाया इसके बारे में, बट इवन देन जस्ट डिस्कशन जो हो रहे हैं, हरानंद दादा जी ने बोला, रविंद्र दादा जी ने बोला और मीरा दीदी ने, तो मैंने उनको सुना। तो जो मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि एक्चुअल में अभी पीछे एक वीडियो भी हमने बनाया था कि जो ओरिजिनेशन ऑफ दिस क्रिएशन कि कैसे हुआ था, तो उसमें मैंने कुछ स्टडी किया था। तो मैं कुछ रखना चाहता हूँ कि साइंस जो है, जो साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, व्हाट दे थिंक अबाउट कॉन्शियसनेस। यानी पहले क्या होता था कि एटम को सबसे छोटा पार्ट माना जाता था, फिर पता लगा नहीं नहीं, एटम में भी अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करते हैं। और बहुत सालों तक जो है, कई डिकेड्स तक जो है, इलेक्ट्रॉन वाज कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ओके, और आफ्टर दैट फिर पता लगा नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से भी छोटे हैं, क्वार्क्स कहा गया उनको। फिर जो है और उसके बारे में स्टडीज होती रही। फिर अभी आपने सुना होगा एक 2012 में एक CERN, CERN एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपेंसिव एक्सपेरिमेंट। उसमें बिग बैंग को रिक्रिएट किया गया था। बिग बैंग जो थ्योरी, जो जिसको मानते हैं कि जो पूरा सृष्टि जहां से बनी, या साइंटिस्ट जिस चीज को मानते हैं, तो उसको उन्होंने रिक्रिएट किया। एंड व्हेन इट वाज रिक्रिएटेड, दे फाइनली सेड, उसमें उन्होंने एक पार्टिकल रिसर्च किया, हिग्स बोसॉन, which was much much smaller than, subtler than whatever was originated earlier। क्वार्क से भी बहुत छोटा था, और उससे भी छोटा उन्होंने कहा है। और वो छोटा क्या है?
they could not reach there, and finally they said it is God particle. तो वो जो है गॉड पार्टिकल और कुछ नहीं है, दैट वाज कॉन्शियसनेस। और इसमें जो है ना, मैं दो तीन बाई चांस मेरे पास मैंने लैपटॉप में लिखा है, तो क्योंकि मैंने कुछ इसमें स्टडी किया था, तो मैं दो तीन जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं उनकी मैं कुछ दो तीन लाइंस जो है शेयर करूंगा। The physicist Planck, the originator of quantum theory, said, consciousness I regard as fundamental. I regard matter as derivative of consciousness. जो स्पिरिचुअलिटी में आज जिस चीज को मान रहे हैं कि एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम नथिंग, बट दैट नथिंग हैज पोटेंशियल ऑफ प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग। ठीक है ना? तो ये चीज सिर्फ स्पिरिचुअलिस्ट नहीं मान रहे इस चीज को, द ग्रेट फिजिसिस्ट प्लैंक, मैक्स प्लैंक, वो भी इस चीज को मान रहे हैं। फिर Bohr, the father of modern atomic physics, also confirmed that consciousness was indispensable of quantum physics. यानी कि क्वांटम फिजिक्स कॉन्शियसनेस के बिना जो है हो ही नहीं सकती। Modern physiology is also extending our existence beyond physical limitations. Nobel Prize laureate Wald indicated consciousness lies outside the parameter of space and time, and it cannot be located as it has no location. It is all pervading. Consciousness, therefore, is the potential final field behind the apparent universe comprised of mental as well as material. ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये डिफरेंट साइंटिस्ट की स्टेटमेंट है कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, दे आर आल्सो एक्सेप्टिंग दिस थिंग, दैट जरूरी नहीं कि जैसे राजेंद्र दादा ने बहुत अच्छी लाइन बोली कि जिस जिसका हम एग्जिस्टेंस सामने प्रूव नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, वो है। और साइंटिस्ट इस चीज को बिल्कुल बिलीव करते हैं कि है। और आने वाले टाइम में जो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही जो है, जैसे जो सर्न का एक्सपेरिमेंट हुआ था उससे रिलेटेड और जो है फर्दर उसकी जो बल्कि एक्सपेरिमेंट्स की जो आउटपुट हैं, दे आर कमिंग। वो अभी कहते हैं कि आने वाले 5 से 7 सालों में और ज्यादा जो है उसके बारे में आउटपुट मिलेगी। सो we cannot think of spirituality without science, and we cannot think of science without spirituality. दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, और साइंस और किसी भी एंगल से हम ये नहीं कह सकते कि स्पिरिचुअलिटी नॉन साइंटिफिक है। इट इज 100% साइंटिफिक। बाबा ने तो मतलब सारा बोला। और जितने भी है, जैसे बहुत छोटी सी बात है कि एवरीथिंग in this universe, from atom to the whole universe, whole creation follows a cyclic order. वो कहते हैं ना, चक्रीय व्यवस्था है। एक छोटे से छोटा एटम भी आप ले लोगे, उसमें भी जो एक सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके आसपास घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके। और उसी तरह से सोलर सिस्टम है, उसके सेंटर में सन है और आसपास प्लैनेट्स हैं। तो जितनी भी गैलेक्सीज हैं, हर एक में कुछ ना कुछ सेंटर में आसपास घूम रहा है। तो अब उन सभी का, जो सभी गैलेक्सीज हैं, हर एक चीज का तो एक सेंटर होना चाहिए। साइक्लिक जो ऑर्डर है वो यही कहता है, और वो सेंटर और कुछ नहीं है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज परम शिवा, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, व्हाटएवर, देयर आर सो मेनी नेम्स फॉर दैट। सो 100% जो मुझे लगता है कि हम भी ये चीज कह सकते हैं। मैं भी एक साइंस स्टूडेंट रहा हूँ, इंजीनियरिंग किया हमने, और उसमें जो है जस्ट वी ऑलवेज फॉलो जो भी बाबा ने बताया है हमें, एवरीथिंग इज 100% साइंटिफिक। सो साइंस 100% follows spirituality, but they say that let us wait for some results, और उसका एग्जिस्टेंस जो है सुप्रीम कॉन्शियसनेस का जो है प्रूव हो जाए। क्योंकि जस्ट जैसे मैंने साइंटिस्ट की स्टेटमेंट बताई, तो वो इस चीज को प्रूव करती है। और दूसरा पॉइंट जो है वो क्या था, वेजिटेरियनिज्म पे, उस पे जो है जस्ट मैं यही कह सकता हूँ कि अभी जो है ज्यादातर जो मेरे एक्वेंटेंस में जानकार हैं, वो यही कहते हैं जो जिस हानि प्रोटीन की कमी है, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। जो जो मुझे लगता है कि अभी उस चीज में थोड़ा सा गैप है। हालांकि अगर हम देखें कि साइंटिफिकली वी नो कि अगर किसी कोई थोड़ी बहुत देर एंग्जाइटी में रहे, डिप्रेशन में रहे, कितने तरह के नोरेपिनेफ्रिन और बुरी तरह के जो केमिकल्स जो है, हार्मोन सिक्रेशन होता है, पूरी बॉडी को डैमेज करते हैं। जो तो जो पशु जिनको जो है जस्ट पता है कि मेरे को कल स्लॉटर किया जाएगा, मारा जाएगा, उन मतलब जस्ट दे आर आल्सो थिंकिंग ना कि हाँ भाई जस्ट हमें इनके इकट्ठे रखा गया, देखते हैं वो भी सब कुछ, दे आल्सो ऑब्जर्व। ठीक है, उनमें माइंड उतना डेवलप नहीं है हम ह्यूमंस की तरह, बट इवन देन दे आल्सो सी दैट वी आर गोइंग टू बी स्लॉटर्ड और लाइक दैट। तो आप सोचिए कि उनका जो है
जो केमिकल्स उनके सिक्रीट हो रहे हैं और अंदर जो है किस तरह से उनका जो है बुरा हाल हो रहा है, और जो जैसे अभी मीरा दीदी ने बताया और दादा भी बता रहे थे कि कैसे कैंसेरियस जो है कैंसर इनमें डेवलप हो गया, उनको भी स्लॉटर करके उनको जो है कट पेस्ट करके और वट बना के उनको जो है थालियों में परोसा जा रहा है। सो इट इज वेरी डेंजरस। नॉन वेजिटेरियन जो है बहुत खतरनाक है, और बहुत जल्दी ही जो है उस चीज में जो है बिलीव करेंगे कि हाँ भाई कि जस्ट वेजिटेरियन जो है जरूरी है वेजिटेरियन होना, क्योंकि हम ह्यूमंस जो है बेसिकली हम शेर चीते नहीं है जो है उनको खाएं, तो हम हमें जो है जस्ट वेजिटेरियन ही होना चाहिए। और साइंस भी जो है जल्दी इस चीज पे जो है आएगी। तो मेरा यही कहना है कि साइंस अभी पूरी तरह से इस चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं, और ज्यादातर जो है मेरे जो जानकार डॉक्टर्स हैं और वट नॉन वेजिटेरियन जो है लेते हैं मैक्सिमम। सो ओके, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू सो मच दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने, क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपने साइंटिफिकली चीजों को समझाया। लेकिन मैं जो समझ पाती हूँ, मैं हम लोग तो सोशल साइंस के बैकग्राउंड से हैं और मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। मेरा जो समझ है कि एक से एक विद्वानों को मैंने देखा है जो बड़े से बड़े पद पर हैं, और वो सभी चीज खाते हैं और एट लास्ट सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, और बाकी की जनता सब उनको फॉलो करती है। अरे ये तो बड़े बहुत बड़े आदमी हैं। अगर कोई मतलब लोकपाल मेंबर हो गया तो लोग ये तो बहुत बड़े आदमी है, लेकिन मैंने उनको देखा कोरोना में बेचारे सबसे पहले वो चले गए। वो सरवाइव नहीं कर पाए, उनको भारत सरकार की सारी चीजें उनको लगी रही, सारी व्यवस्थाएं थी उनके पास, फिर भी नहीं बच पाए, क्योंकि उनके अंदर की जो चीजें हैं वो तो डैमेज हो रही है बाय थिंकिंग। बाकी जो प्रोसेस है जो हम लोग अपनी आंखों से सामने देख रहे हैं, हर चीज यहाँ बोल नहीं सकते, लेकिन आप समझ सकते हैं। तो जिसको भी आप समझ रहे हैं कि ये हमारे रोल मॉडल है, हीरो है, हीरोइन है, जिसको एक्टर एक्ट्रेस कहते हैं, आजकल यंग जनरेशन उनको फॉलो कर रहा है। जिन जिनको लोग फॉलो कर रहे हैं उनको अगर आप करीब से देखेंगे तो उनका लाइफ स्टाइल इतना बेकार है कि हम लोग जिस तरह की लाइफ स्टाइल समझते हैं, हम लोग जो बाबा ने हमको बताया है, उसके सामने वो लोग बिल्कुल जीरो नहीं माइनस में जा रहे हैं, और उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। पूरी दुनिया जब हमारे यंगस्टर्स फॉलो कर रहे हैं, आजकल तो बूढ़े लोगों में भी एक क्रेज हो गया कि हम अपडेट हो जाएं। अपडेट होने के चक्कर में वो आउटडेट हो रहे हैं, वो अपनी जिंदगी को ही कम कर रहे हैं। तो जो जिनको हम फॉलो कर रहे हैं वो एक इंसान है, चाहे वो साइंटिस्ट हो। साइंटिस्ट तो कितने 100 साइंटिस्ट मिलकर के एक चीज पे काम कर रहे हैं, और परमात्मा इतनी पूरी दुनिया को चला रहे हैं। एक छोटा सा गोल लेकर के वो लोग जो प्रोजेक्ट लेते हैं उसमें सालों साल लगे रहते हैं, तब जाके कहीं सक्सेस मिलती है। तो उनकी क्षमता कितनी कम है ये हमें समझना होगा। ये नहीं कि अगर कोई आदमी बहुत बड़े पद पे चला गया है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गया है, बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया, इसका मतलब कि वो बहुत कुछ जानता है या उसके बाहर कुछ है ही नहीं। ये चीजों को हमें हर किसका जो लिमिटेशन है, उस लिमिटेशंस को हमें समझना होगा कि वो भी एक साधारण इंसान है, और इंसानी बुद्धि इंसानी दिमाग से वो सोच रहे हैं और चल रहे हैं। जिसको हम समझ रहे हैं ना कि वो बहुत कुछ है, वो बहुत कुछ कुछ नहीं है, सब बहुत छोटा है। ये बात पहले सब समझ जाएं तो कहीं किसी को समझने में परेशानी नहीं होगी। ये मेरी समझ है दादा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आप लोग का। और फिर जैसे दीदी आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ दीदी, जी। जैसे हरानंद दादा ने बताया था कि मीन्स वेजिटेरियन डाइट में कुछ कमियां है, तो उसके लिए हम लोगों को सप्लीमेंट ले सकते हैं। तो मैंने एक व्हाट्सएप पे दीक्षित है उनका ही वीडियो देखा था कि जो B12 है, B12 हम लोगों को जो मिट्टी के कण से मिलता है। तो जो हमारे गाय भैंस है उनको जो चारा खाते हैं तो उनको B12 मिल जाता है, लेकिन वो हम लोगों को नहीं मिलता है। तो उसके लिए भी वेस्ट कैप्सूल्स है जिसमें से हम लोगों को B12 मिलता है। ऐसे मैंने एक देखा था वीडियो। जी यही मुझे जी, रखना था। धन्यवाद दीदी आपका। लेकिन ऐसा तो कहीं ना कहीं कुछ, जैसे आपने कहा कि जो चारा खाते हैं जानवरों को मिल जाता है, तो वेज के माध्यम से, मिल्क प्रोडक्ट्स के माध्यम से कहीं कहीं मुझे लगता है कि B12 अवेलेबल है। डीपली जो उन्होंने स्टडी किया है वो बता पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग वेजिटेरियन डाइट पे हैं तो कहीं ना कहीं उसका सप्लीमेंट अवेलेबल है। हमें उस पर और रिसर्च करने की, समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको। और अगर कोई है, अभी समय है हमारे पास, अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्कार दीदी। नमस्कार दीदी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सभी का। मैं बहुत छोटी हूँ आप सबसे उम्र में,
तो मुझे लगता है ज्यादा बोलना तो सही नहीं होगा, लेकिन जितना मुझे अनुभव है, स्पिरिचुअल होने के लिए वेजिटेरियन होना एक रास्ता है। कि आप अगर वेजिटेरियन हैं तो इट्स वेरी इजी टू मूव टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। बाबा ने सिर्फ वेजिटेरियन होना ही काफी नहीं बताया है। अगर हम सप्लीमेंट्स नहीं भी लेते, हम असाधारण भोजन करते हैं, लेकिन यम नियम का पालन करते हैं, साधना करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजों से हम ओवरकम हो सकते हैं। जो हम सोचते हैं कि सिर्फ वेजिटेरियन होने से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो हमारी शायद नेगेटिविटी होगी। हम हेल्दी हो जाएंगे। देखिए, हम पूरा दिन भूखा रहते हैं, एकादशी रखते हैं तो पूरा दिन भूखा रहते हैं, तो हमारे अंदर पावर खाने से तो नहीं आ रही है, वो पूजा से आ रही है। तो अगर हम स्पिरिचुअल हैं तो इट्स मोर देन इनफ टू बी वेजिटेरियन। तो उसके लिए एक रास्ता, सही रास्ता है, तो एक तरीका है। तो बाकी आप सभी गुणी लोग हैं, तो मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकती। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी आपका। यंगस्टर्स का एक अपना ही महत्व होता है। हमारा ये जितना भी चल रहा है फोरम, इसमें अगर यंगस्टर्स आएंगे तभी इसकी सफलता है। बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानी अगर आ गए तो उनकी एक आवश्यकता है, लेकिन सफलता नहीं है। मैं ये जरूर कहूंगी, हमारी सफलता है जब हमारे यंगस्टर्स इन चीजों को समझें। और हमारा प्रोग्राम सफल है तो हमारे पास स्पीकर्स होने चाहिए, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होगा आप लोगों के बिना। इसलिए आपका इंपॉर्टेंस हम लोगों से कहीं अधिक है। आप लोग यंग लोग आए, अपने फ्रेंड्स को भी लाएं। हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे टॉपिक हो जो आप लोगों के लिए यूजफुल भी हो। और मैं आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। और भी जो हमारे ऑडियंस हैं वो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ दीदी, मैं बोलना चाह रहा था। जी शालिनी जी। दीदी ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। फैक्ट है, बाबा डायरेक्ट कह ही रहे हैं, देयर इज अ क्वेश्चन आंसर, उसमें कहते हैं जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं इनको यदि हम पॉजिटिव माइक्रोवाइटा, आई मीन हमारी साधना ही पॉजिटिव माइक्रोवाइटा की है, आई टोल्ड, तो उनके लिए हानिकारक है। दैट इज वाई वो कहते हैं। इसीलिए आज हम लोग को पूछना पड़ता है कि तुम नॉन वेज कब खाए हो, कितना पहले छोड़े हो, इत्यादि। एक और बात बाबा बोलते हैं वेजिटेरियन के मामले में कि जो बेसिकली आप देखिएगा इन लोगों के शरीर से इतने गंध आते हैं। एक पर्टिकुलर एनिमल्स भी होते हैं जिनके शरीर से काफी गंध आते हैं, आपने देखा होगा। तो बाबा बोलते हैं दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स। एन अनप्लीजेंट ऑर्डर इज एमिटेड फ्रॉम द बॉडी बिकॉज ऑफ देयर हार्मोन्स, आई मीन जो खाने से जो सीक्रेट होते हैं, इस तरह के गंदे हार्मोन्स। आप देखिए ना, कोई प्याज खा लेता है उसके शरीर से स्मेल आती है, मुंह तो छोड़ दीजिए। Everyone should take a bath, बाबा बोलते हैं, at regular interval to clean the body and eat vegetarian food. This is one. And those who have excessively mean, देखिए एक और बाबा बोलते हैं जिनकी सोच यदि निगेटिव है, ये देखिए यहाँ तक बातें हैं, तो those who have excessively mean propensities also develop this kind of repulsive order due to the defect in their hormones. तो इवन खाने का नहीं, सोच का भी प्रभाव पड़ जाता है हार्मोन्स के ऊपर। सो अ वेजिटेरियन विल फील अनकंफर्टेबल इन दिस। कहते हैं कि जहाँ आप एक और एग्जांपल लें, जहाँ नॉनवेज लोग खाते रहते हैं, आप कितना अनकंफर्टेबल फील करते हैं, कल्पना करिए। तो जबकि वो आपके वेजिटेरियन ग्रुप में जाएंगे तो वो अनकंफर्टेबल बिल्कुल नहीं रहते हैं। तो द वेजिटेरियन विल फील अनकंफर्टेबल इन इन द कंटेंट। उनके बर्तन में खाने में भी आप बड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हो। या आई मीन सो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस वह बोलते हैं should avoid using any container which has been used for holding non-vegetarian food. अब आप कल्पना करिए कि हम लोग जिस पार्टी में जाते हैं, खाते हैं, कंटेनर तो आप चेंज नहीं करते हैं। आप अपना प्लेट तो लेके जाते ही नहीं है, वो तो उसी प्लेट में हो सकता है अगले, इसके पहले किसी ने नॉन वेजिटेरियन खाना खाया हो। तो दीज आर वेरी सटलर थिंग्स। इसलिए बाबा कहते हैं कि अ साधु मस्ट बी वेजिटेरियन। यहाँ साधु का मतलब जटा बढ़ाने वाला साधु नहीं है, जो साधक हैं उन्हीं को बाबा कह रहे हैं। और एक और जगह मैंने देखा था, जो लिप्रेसी जो है, कितना खतरनाक बीमारी है, उसके डाइट में भी बाबा बोलते हैं कि अ पेशेंट मस्ट स्ट्रिक्टली अवॉइड ऑल नॉन वेजिटेरियन फूड, ऑल सॉर्ट ऑफ nutritious vegetarian food should be eaten if the condition of the liver allows। मतलब लीवर पे डिपेंड करता है।
सो इफ फिर बाबा कहते हैं कि जितने भी वैष्णवाइट्स हैं ना, वो लोग दे आर स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन एंड दे आर रिलेटिवली हेल्दी। तो ये बात कुछ मन में आ रही थी, जो वेजिटेरियन के मतलब जैसा खाने से स्मेल भी आता है, उन लोगों के बगल में आप बैठिएगा, आप मेनी टाइम्स आई हैव फेल्ट अनकंफर्टेबल, इवन सपोज जब ट्रेन में जा रहे हैं, आप कर क्या सकते हैं, बगल में ही सीट पड़ी है तो, बट यू विल बी अनकंफर्टेबल थ्रू आउट। अब एक और बात कहते हैं, एक योगा साइकोलॉजी एक बुक है जिसमें प्लेक्सियन माइक्रोबाइटा में बोलते हैं, मैं मेरे को याद आ रहा था जब हमारे भल्ला दादा बात कर रहे थे, बाबा कहते हैं बहुत क्लियरली कि आज हमको लगता है, जैसे मैंने बोला, कि द साइंस एंड द एंटायर सिविलाइजेशन इज इन इन्फेंसी स्टेज। अभी कितने साल हुए ही हैं मनुष्य को इस स्थिति में आए हुए। सो द वर्ल्ड इज, बाबा कहते हैं, द वर्ल्ड इज मूविंग रैपिडली फ्रॉम फिजिकलिटी टू इंटेलेक्चुअलिटी। A day is sure to come when this intellectuality will be transformed into spirituality. Just as the intellectual age is fast approaching, the spiritual age will also come in the very near future. So, जैसा हम लोग बोल रहे हैं ना कि साइंस, पहले तो लोग मना ही कर देते थे, अब तो महसूस करते हैं इसलिए मना तो नहीं करते हैं, बट दे कैन नॉट प्रूव, सो दे डोंट टॉक ऑन दैट लाइन। तो ये कुछ बातें थी जो मन में आ रही थी दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दादा। आप लोग तो मुझसे सीनियर हैं इस मामले में, लेकिन मैंने जो अनुभव किया कुछ साल पहले तक, मैं हम क्योंकि बचपन से हम लोग खाए नहीं तो अनकंफर्ट फील करते थे, बट किसी को कन्विंस नहीं कर पाते थे। कन्विंस जो लोग खा रहे हैं तो हमारे पास प्रॉपर लॉजिक नहीं होते थे कि उनको क्या बताया जाए, कैसे समझाया जाए। ये लगता था कि ये लोग हमारे से उम्र में भी बड़े हैं तो इनको कैसे, लेकिन आज के डेट में डिस्कशन से या पता नहीं बाबा की कृपा से अब हम लोगों के बीच में इतनी कैपेसिटी आ गई है कि अब कोई भी सामने आ जाए वो तो या तो कन्विंस हो जाएगा या फिर वो दोबारा मेरे सामने नहीं आएगा। इतनी स्थिति हम लोगों की हो गई है, इन चीजों में हमारा कमांड हुआ है इन डिस्कशंस के माध्यम से। तो मैं चाहूंगी कि हमारे साथ और भी यंग लोग जुड़े। यंग लोग जब जुड़ेंगे और जब उनके अंदर ये इस तरह की कॉन्फिडेंस आएगी तो हम समझेंगे कि हमारी सफलता है, हमारे ये जो फोरम्स चल रहे हैं इनमें हम कुछ सफल हुए हैं। अदरवाइज 1-1.5 घंटे का समय, इतने लोगों का समय, 10 लोगों का एक आदमी का 1.5 घंटे का समय और 10 लोगों के 150, कितने घंटे हम लोग इस पे दे रहे हैं, तो उसकी सफलता हम तभी समझेंगे। जी दादा, आप अपने आप को अनम्यूट करें। बिल्कुल। हाँ हाँ। मैं एक चीज कह रहा था ना कि जैसे कैसे लोगों को बताना है, तो मैं कईयों से बात करता हूँ ना, तो मैं ऐसे कहता हूँ कि देखो, अगर जैसे पहले से ही जो है बहुत पुराने समय से ये प्रथा चली आ रही है कि जैसे जिस घर में कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उस घर में खाना नहीं बनाते, ठीक है ना, आस पड़ोस से खाना बना के देते हैं या नहीं खाते नहीं है। उसका मेन कारण है कि जो डेड बॉडी है उसमें से इस तरह की जो है ओडोर या इस तरह की जो है जस चीज मतलब जस निकलता है जो कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। दिस इज सेड। तो मैं तो ये कहता हूँ, मैंने कहा एक चीज बताओ कि जब डेड बॉडी घर में होती है तो तब खाना नहीं बनाते और ठीक एनवायरनमेंट नहीं होता, तो आपने तो फ्रिज में रखी हुई है ऐसी चीज, वो भी तो डेड बॉडीज ही हैं, किसी मतलब कोई मीट है या कोई इस तरह की चीज है, तो आप रख के मतलब जस्ट। और फिर हमारे कई लोग जो है जैसे वो पूछते थे कि जैसे हम सात्विक फूड जो है अनियन गार्लिक नहीं खाते, तो मेरा हमारी एक टीम थी, हम 6-7 लोग थे, तो वो कहते थे कि भाई आप नहीं खाते, तो मैं अलग से मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा आपका चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर मैं तो ये कहता था, मैं कहा देखो, आप लोग उनके घर में नवरात्रे वगैरह जो है रखते थे, मैंने कहा आप जो है जैसे 9 दिन नहीं खाते, क्यों नहीं खाते, 9 दिन लहसुन प्याज बंद कर देते हो ना, तो कोई ना कारण होगा ना कि ये ठीक चीज नहीं है। 9 दिन आप 9 दिन के लिए बंद करते हो, हमने परमानेंट बंद कर रखे हैं। तो मतलब इन चीजों का इम्पैक्ट ऐसा पड़ा, फिर वो मेरे 5-6 जो साथी थे, अब उन्होंने टर्न बाय टर्न क्या किया, कहते नहीं भल्ला दादा, भल्ला जी हमारे साथ नहीं खाते, हमारा कुछ नहीं खाते, तो वो क्या करते थे, उन्होंने दिन फिक्स कर लिया कि एक दिन जो है वो बिना लहसुन प्याज का बना के आएंगे और मैं खाऊंगा। तो इस तरह एटलीस्ट मैं क्या एक एक दिन तो चलो बिना अनियन गार्लिक का उनके घर जो है बनना शुरू हो गया। मतलब मीन्स वी शुड कन्विंस, वी शुड हैव समथिंग कन्विंसिंग इन दैट। और जैसे मैंने बताया, ये जो केमिकल्स का हार्मोनल सिक्रेशन है, ये जो कितने डरे हुए होते हैं अगर किसी को मारा जाए, आपको जो है मतलब आपको इन द सेंस कि अगर किसी को जो है अगर रखा जाए कि हाँ भी उसको कल मारा जाना है, तो ऐसे ऐसे केमिकल्स एसिड्स निकलेंगे, और जब उनके लिए तो डेंजरस हैं ही, और जो खाते हैं उनको उनके लिए और ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ना, जस्ट समझाने के लिए हमें बहुत कुछ आते हैं, लेकिन वो है ना
कि आजकल डॉक्टर्स ने इस तरह का वो चला दिया कि प्रोटीन जो आपको मिलेगा वहीं से मिलेगा, तो ये सारी चीज इसलिए जरूरी है, ऑल दैट। तो इट विल टेक टाइम, बट होपफुली द टाइम इज कमिंग। जैसे राजेंद्र दादाजी ने बहुत अच्छा कहा कि टाइम इज कमिंग फॉर स्पिरिचुअलिटी, बिल्कुल उसका हाई टाइम आ रहा है आने वाले समय में। और जो बाबा ने जैसे बोला है, जो सदविप्र है, इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअलिस्ट जो हैं, वो सारे जो है जस्ट वो गवर्न करेंगे और चलाएंगे। और एंड सर्टेनली जो फिजिकलिटी से अब इंटेलेक्चुअलिटी और आगे स्पिरिचुअलिटी इज कमिंग, दैट इज ऑन द वे, सर्टेनली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच दादा। ये रीजनिंग मेरा भी होता था कि आप लोग नवरात्रा में क्यों नहीं खाते हैं, अब आप लोग भी उस समय खाना शुरू किए। जयश्री दीदी, आप कुछ कहना चाहती हैं? मुझे मुझे एक बात कहनी थी कि स्पिरिचुअल साइंस के बारे में, कि सब लोग बोलते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान का अस्तित्व कहाँ है, बताइए हमें। तो बाबा कहते हैं मैं रहस्य हूँ और रहस्य ही रहूंगा। तो जो है और तो साइंस की लैंग्वेज में बताया जाए तो दैट इज अ वेरी कॉस्मिक माइंड इज अ वेरी सबस्टल, सो वी कैन नॉट प्रूव इट बाय रिसर्च, वी हैव टू एक्सपीरियंस। तो मैं वही एक चीज कहना चाहती हूँ कि मैं रहस्य हूँ और रहस्य ही रहूंगा। तो हम लोगों को खुद ही साधना करके पहचानने का है। जी जी दीदी। तो इसमें बाबा ने ये भी कहा है कि तुम जो जादूगर में के जो जादू जो करता है, अगर उसके ग्रुप में तुम लोग चले जाओगे तो उसके जादू के खेल को समझ लोगे, तो उस खेल को भी समझ सकते हैं हम लोग अगर उसी ग्रुप में शामिल हो जाए तो। ये हमारे पास दीदी वो जो ये व्हाट्स रॉन्ग विथ ईटिंग मीट है, इसमें बहुत सारी चीजें हमारे क्वेश्चंस जो आते हैं जनरली उसके आंसर्स दिए गए हैं। जैसे व्हाट्स रॉन्ग विथ ईटिंग मीट, बट आवर एंसेस्टर्स हैव ऑलवेज ईटन मीट, हैवंट दे? क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स इस बुक में आपको मिलेंगे। और मैं चाहूंगी कि हमारे जो लोग हैं इस बुक को पढ़ें, बहुत छोटी सी बुक है। बट इजंट नेचुरल फॉर ह्यूमन बीइंग टू ईट मीट? फिर है हिस्ट्री ऑफ वेजिटेरियनिज्म, व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ मीट ईटिंग, why do meat eaters get more disease and die sooner, vegetarians are far healthier than meat eaters, vegetarians are more physically fit than meat eaters, will I get enough nutrition without eating meat, is there any connection between our meat eating habits and world starvation? Yes. The politics of hunger, ahimsa not injury to living beings, what is the vital life principles, some famous vegetarians, I still like the taste of meat, what shall I do? इस तरह की चीजें इसमें दी गई हैं। तो मुझे लगता है कि जितने क्वेश्चंस हैं, हमारे क्वेरीज हैं, वो शायद इसमें सबको मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा डिस्कशन तो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, बाद में भी सवाल जवाब आते रहते हैं। तो ये इसको चुन करके इसीलिए शायद बनाया गया है, आनंद मार्ग पब्लिकेशन ने इसको निकाला है, नई बुक है ये। तो जिन इसको जरूर आप लोग रेफर करें सबको, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो सवाल हैं सबके मन में आते हैं, और हर बार कभी कभी होता है कि हम प्रॉपर जवाब सबको 10 मिनट 5 मिनट में नहीं दे सकते, तो उसको हम ये बुक रेफर कर सकते हैं। और या दीदी पढ़ना बहुत जरूरी है। कहाँ कहाँ है दीदी ये बुक, कहाँ से अवेलेबल है? मतलब ऑनलाइन है या क्या है? मतलब आनंद मार्ग दादा बुक मेरे है पास तो दादा। हार्ड कॉपी में है दादा, आनंद मार्ग पब्लिकेशन से है दादा ये। वो तो दादा इफ आप जानते होंगे, नाम बताइए ना मतलब। नाम बताइए व्हाट दीदी। इज रॉन्ग विद ईटिंग मीट, आई थिंक आनंद मित्रा दीदी का होगा ना दीदी, राइट? दादा ये पब्लिश बाई आचार्य संपूर्णानंद अवधूत, इसे ओके पब्लिकेशन जब ओके। सेक्रेटरी रहे थे तब का है। आनंद हाँ मार्ग हाँ पब्लिकेशन, हाँ हाँ, ये मधु मंजुला ठेहल रातू रोड का ये है ये। स्मॉल बुकलेट है, जी जी। ओके ठीक है। छोटा सा है, ज्यादा बड़ा या भी नहीं है या दादा। किसी को और वो दीदी, आसानी से हम लोग गिफ्ट भी कर सकते हैं इसको। जी दादा। दीदी स्पिरिचुअलिटी के बारे में मैं एक लाइन मन में आ रहा था कि द बाबा हैज गिवन सो प्रैक्टिकल। उनके पहले आध्यात्म के लिए लोग जंगलों में जाते थे, आई मीन इट वाज एस्केपिज्म, नॉट इन ट्रू सेंस। बाबा ने उसको सदाशिव के श्लोक में बांध दिया है, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय। सो बाबा कहते हैं दैट स्पिरिचुअलिटी इज नॉट एन उटोपियन आइडिया but a practical philosophy. That is how he has inculcated. I remember the Bhala Dada's presentation of that day, which can be practiced and realized in day-to-day life. However, however mundane it be. So the spirituality stands for
evolution and elevation, and not for superstition, inaction or pessimism. जो जितने भी आज हम फिसिपरस टेंडेंसीज देख रहे हैं समाज में, दुनिया में, आई मीन, या जितने भी क्लान फिलोसफीज देख रहे हैं, विच टेंड टू क्रिएट द साइकिल्स ऑफ नैरो माइंडेडनेस, आर इन नो वे कंटेंटेड विद स्पिरिचुअल. इनको अध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं है. जिसको हम आज रिलीजन कह रहे हैं, मतवाद कह रहे हैं, उसको गलती से लोग आज धर्म का नाम से पुकारते हैं. सो दैट हैज नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी एंड शुड बी discouraged. So that which leads to broadness of union, I mean unison, alone should be accepted. So the spiritual philosophy does not recognize any distinctions and differentiations unnaturally made between one human being and another, and stands for यूनिवर्सल फ्रैटर्निटी. इसी को इन्फ्लुएंस लेकर के मैं कह, आज जितनी भी दुनिया में परेशानियां देख रही हैं, दिस इज ओनली बिकॉज लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी. अदरवाइज एक साधक, हाउ कैन यू हेट एनीबडी? यू कैन नॉट. सो अध्यात्म आ जाने से, जैसे बाबा, जैसे दादा बोल रहे थे कि बात सही है, साइड बाय साइकोलॉजी में बाबा बोले हैं, अभी इनका पेट भर जाएगा. सो दैट डे इज श्योर टू कम when with the same speed, intellectuality will convert into spirituality, and there will be a sustainable world, happy world, just world. So that is the benefit of spirituality, and people have started realizing, and then they will realize very fast, and people are increasing slowly, and our effort is required. हमारा प्रयास बहुत जरूरी है इस डायरेक्शन में. That is very important. So thank you, Didi. So much only I wanted to tell. थैंक यू सो मच दादा. मीरा दी, आर यू देयर? मीरा दीदी, मीरा दीदी, मीतू दीदी. हाँ दीदी. हाँ दीदी, कुछ फाइनल वर्ड्स आप बोलना चाहेंगी? हाँ दीदी, आज का सेशन तो आई थिंक और कोई स्पीकर है तो अगर नहीं है तो काफी अच्छा हुआ आज का हम लोगों का सेशन. तो आई थिंक आई एम ऑडिबल, नो? Yes, या yes. दीदी. तो हम लोगों का काफी अच्छा रहा, एंड दादा लोगों का काफी मतलब ये टॉपिक ही बहुत मुझे अच्छा लगा. दादा लोगों ने, हरानंद दादा, राजन दादा, अजय भल्ला दादा, सब लोगों ने काफी अच्छा जस्टिफाई किया आज के टॉपिक को. और आई थिंक इस तरह का ये डे टू डे लाइफ में हमें अंडरस्टैंड करने वाला भी टॉपिक है हमारे लिए. तो काफी अच्छा रहा. एंड पूनम दीदी, थैंक यू फॉर हैंडलिंग टुडेज सेशन. एक्चुअली मेरा एग्जाम का भी प्रेशर चल रहा है. सॉरी फॉर बीच में मैं ना इधर स्टडी सर्कल में भी जुड़ी हुई हूँ. दादा बहुत टफ है एक्चुअली. हम लोगों का जो एडवांस का चल रहा है तो योगा बहुत. क्लास की बात, योगा की बात करें जी. हाँ जी दादा, एक्चुअली हम लोगों का एडवांस कोर्स का Yeah. डेट सीट वगैरह आ गया है, तो उसके कारण थोड़ा सा स्टडी भी करना पड़ता है. एक्चुअली इस बार का थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा टफ है. तो साथ साथ हम लोगों का स्टडी सर्कल भी इधर चल रहा था. हम लोग इसमें लगे हुए गूगल स्टडी में, तो वो भी कर रहे थे, आप लोगों का साथ साथ सुन भी रहे थे. थैंक यू सो मच दादा, आप लोग सबका जुड़ने के लिए और टॉपिक को जस्टिफाई करने के लिए. एंड थैंक यू पूनम दीदी. नमस्कार सभी. नमस्कार. लेकिन आज दीदी लोगों से ज्यादा दादा लोग हो गए हैं, इस पे विचार करने की दीदियों को आवश्यकता है. सभी जी दीदी लोग बिजी हो गई हैं, तो हम लोग का भी अपने पर्सनल लाइफ में थोड़ा बहुत हो जाता है. और जी 2 जी. मिनट कीर्तन कर लें पहले तो अच्छा हाँ जी, रहेगा. हाँ जी. बिल्कुल दादा, आप कीर्तन जरूर करें. ओके. बहुत अच्छा दादा करते हैं. एंड दादा अरे ने सजेशन भी दिया था, अजय भल्ला दादा, की कीर्तन के बिना हम लोग क्लोज नहीं करेंगे. तो ये बहुत सजेशन दादा, प्लीज ओके. करिए जी. बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम.
बाबा नमः केवलम 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 बाबा नाम 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 केवलम। परमपिता बाबा की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भल्ला दादा, आपका बहुत सुंदर कीर्तन गाया आपने भक्ति भाव से पूर्ण, सबको झुमा नमस्कार दिया। धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार सभी नमस्कार का, नमस्कार सभी लोग जो लोग नमस्कार। भी जुड़े रहे, 1.5 घंटा समय हम लोगों को दिया, उन सभी के हम आभारी हैं। जनदेव राव दादा हैं, गीता रावल दीदी हैं, भरत शर्मा दादा हैं, नम्रता दीदी, मनोज दादा, शालिनी दीदी, जयश्री दीदी, राधा कृष्णन, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार है। जयश्री दीदी को स्पेशल थैंक्स। दीदी ने ये टॉपिक भी सजेस्ट किया और वो तैयार भी थी, तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा जयश्री दीदी का एक्टिव पार्टिसिपेशन। और लास्ट टाइम दीदी ने होस्ट भी की थी। दीदी एक्चुअली मुंबई में रहती हैं एंड सी इज वर्किंग वहाँ, आई थिंक आर्किटेक्चर या क्या डिपार्टमेंट है मुझे। दीदी आप बताएंगे क्या अपना इंट्रोडक्शन? हाँ, मैं मुंबई में रहती हूँ। वैसे मैं ठाणा में रहती हूँ। मेरा ऑफिस बांद्रा कलानगर में है। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में मैं आर्किटेक्ट हूँ। तो वहाँ हम पूरा हाउसिंग का काम हमारा चलता है। और मुझे अभी साथ नेक्स्ट साथ टॉपिक हाँ, साथ साथ के दीदी बारे में मार्ग में भी बहुत एक्टिव है। हेल्थ से रिगार्डिंग लोगों को वहाँ, लोगों के साथ वहाँ दीदी का चल रहा है। हमारी जो दीदी है ये मीटू दीदी, हाँ मीतू दीदी, और जो हम लोगों को अभी आई थी दीदी क्लास देने, उनका दीदी का नाम अश्विनी डॉक्टर दीदी, अश्विनी, अश्विनी दीदी। दीदी। तो उन लोग हाँ, सबके साथ इन लोग हेल्थ ड्राइव भी चला रहे हैं मुंबई में। काफी एक्टिव मार्गी में से हैं दीदी, एंड साथ साथ जीपी की एक्टिव मेंबर हैं। तो थैंक यू सो मच जयश्री दीदी, स्पेशल थैंक्स टू यू थैंक यू। टू सपोर्टिंग मुझे अस। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताना था। बोल सकती हूँ क्या? जी जी श्योर श्योर। बोलिए। हाँ, मीन्स जो अपने दादा लोग हैं, मैं तो इतना जानती नहीं हूँ सब स्पिरिचुअल साइंस के बारे में। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ बस। तो मुझे एक था कि मीन्स बाबा बोले हैं कि निर्गुण ब्रह्म में मर्ज होने से तारक ब्रह्म हमारा एम रखने का है। तारक ब्रह्म इज अवर गोल। तो उसके वो टॉपिक नेक्स्ट लीजिए भाई, तारक ब्रह्म। जी जी डेफिनेटली दीदी, हम निर्गुण लोग ब्रह्म। आपका इस सजेशन को भी हम लोग रखेंगे। और हाँ, हमारे साथ राजन दादा ये लोग काफी दादा क्लासेस भी लेते रहते हैं, और काफी सारे लोग दादा लोग हैं, अजय भल्ला दादा है। तो डेफिनेटली इस टॉपिक को हम लोग जस्टिफाई कर पाएंगे कि क्यों। तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम हम लोग सोचेंगे कि जो आपका सजेशन है उसको हम लोग उस पर हम लोग विचार निर्गुण करेंगे। ब्रह्म, सगुण थैंक यू ब्रह्म एंड तारक ब्रह्म। थैंक यू यस। दीदी। थैंक यू पूनम दीदी। एंड इसी के साथ आज का हम लोग सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।
नमस्कार, शुभ रात्रि।